I'm audible. Audio is okay? Yes, sir. Okay, I'll start with report writing. Okay, so let's start with the report writing today. So report. Now report, the word report is derived from the Latin word reportere, which means to carry back. So whenever we go to a place and we see something, and if we have to recount the happenings of that place or any information that we observe, then we use the term report. I mean, report, if you see, the word report is also connected with reporter. So can you tell me what a reporter is? Sir, who collects information from various places? Yeah. So the reporter himself goes to that place. He collects all the information, and he then comes back to his office and writes a report. So reporter travels to that place or scene. He observes everything. He collects the data, and then he writes a report once he comes back to his office. And that report is published in a newspaper or in a magazine or whatever or wherever, and then it is read by the people at large, right? So the word report is derived from the Latin word reportere, which means to carry back. So I'll just show you. I'll highlight it. The word report is derived from the Latin word reportere, which means to carry back. So when a reporter goes to a place of, say, a scene of murder or a scene of calamity or wherever an action has taken place, so what he carries back is information. Then he sits down and writes a report, and the report is then published in a newspaper or in a magazine or wherever, whatever media that the person is involved in. So it is a description of an event which is carried back to someone who is not present there. Now, what is the purpose of writing a report? So reporter, he himself goes and travels to that place and observes everything, and then he prepares a report for people who have not been there. It is for the benefit of those people who have not been there. Right? Got it? Yes, sir. Okay. So report is basically a statement describing what has happened. So the incident has already taken place. So the incident has already taken place. Now what the person does is he goes there and collects all the data, information, photographs, and then compiles a report and then gives it to the person or to his target audience, right? So what are the objectives of writing a report? So there are some 7 objectives. The first one is measuring. Now, if we look at this report in a broader perspective, that is, if we look at report writing in a broader perspective, then what are reports basically used for? First of all, in an organization, the reports are used for measuring executive performance. For example, if I'm working in an organization, then at the end of the financial year, a report will be prepared on my performance. For example, if I was given 10 tasks, out of that I've performed 8 tasks well, and 9th one I've performed moderately, and the 10th task I was not able to do. So this is my annual report. So my boss will prepare a report on my performance, on my annual performance, and then on the basis of that report, my increments, my promotions will happen in the organization. So got it? So a report is basically meant for measuring executive performance in an organization. Got it, Nia? Yes, sir. Okay. Now, a report also helps in combating changes. Now, for example, suppose a report is filed in a government's office that the pollution level of city of Bhopal is going up. So on the basis of that report, the government might initiate some action. जैसे दिल्ली में हुआ था ना, दिल्ली में there was lot of pollution. So a report was sent to केजरीवाल government कि दिल्ली में बहुत pollution है, तो हम लोग odd even लागू कर देते हैं. Odd even लागू कर देते हैं. मालूम है ना आपको? Odd even means?
अच्छा, ऑड इवन क्या होता है कि जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है, पॉल्यूशन, है ना। तो Yes, sir. दिल्ली सरकार को ये रिपोर्ट गई कि आपकी ये 3 महीने में बहुत पॉल्यूशन भर गया है, इसको आप कंट्रोल करिए। तो उनने ऑड इवन का फॉर्मूला शुरू किया। ऑड इवन का क्या मतलब है कि जैसे मेरी गाड़ी का नंबर अगर ऑड नंबर से खत्म होता है, जैसे मान लीजिए 2 3 है, Yes, sir. तो 3 इज ऑड नंबर ना। Yes, sir. तो मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को गाड़ी निकाल सकता हूँ। और अगर इवन नंबर है तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे निकाल सकता हूँ, संडे को शायद कुछ छूट थी। तो ये ऑड इवन का फॉर्मूला कैसे किया? आफ्टर रिसीविंग अ रिपोर्ट। सो रिपोर्ट एक्चुअली हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग चेंजेस। मतलब अगर कोई चेंज लाने होते हैं ना, दोज चेंजेस आर इंप्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ रिपोर्ट। तो सरकार को कोई भी चेंज करना है तो सबसे पहले सरकार क्या मंगवाती है? रिपोर्ट। सरकार भी, ऑर्गेनाइजेशंस भी, कोई भी डिसीजन जो होता है वो रिपोर्ट आने के बाद ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। ये बात समझ में आ गई? Yes. ठीक। Sir, in this, what is the meaning of combating? हाँ, कॉम्बैटिंग मतलब कि फाइटिंग अगेंस्ट। Yes, sir. फाइटिंग, जैसे मान लो मैंने एक रिपोर्ट दी कि चाइना ने हमारे बॉर्डर पे चढ़ाई कर दी। ये मैंने रिपोर्ट दी, खुफिया रिपोर्ट दी आर्मी को। तो ऑन द बेस ऑफ दैट रिपोर्ट आर्मी विल डिप्लॉय एडिशनल ट्रूप्स ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर। होगा ना? Yes. तो एक्चुअली कोई भी चेंज होता है ना, वो रिपोर्ट के जरिए ही उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। मतलब रिपोर्ट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट चेंजेस। कॉम्बैटिंग का मतलब है फाइट अगेंस्ट। ठीक है। Yes, sir. थर्ड, रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। ये तो पक्की बात है। अब कोई रिपोर्टर अगर कोई क्राइम सीन पे जाता है एंड ही राइट्स अ रिपोर्ट, सो नेचुरली इफ यू गो थ्रू दैट रिपोर्ट यू विल गेट इंफॉर्मेशन, है ना। Yes, sir. द बेसिक पर्पस ऑफ अ रिपोर्ट इज टू गिव इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन किसके बारे में? अगर कंपनी का है तो कंपनी का एक्टिविटी, प्रोग्रेस, प्लान्स, प्रॉब्लम्स, किसी भी चीज के ऊपर रिपोर्ट लिखी जा सकती है। ठीक है ना। Yes, sir. आपके स्कूल में आपको क्या मिलती है साल के अंत में? कौन सी रिपोर्ट कहलाती है वो? Mark sheet report. प्रोग्रेस रिपोर्ट। उसको कहते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब होता है कि आपने साल भर में क्या प्रोग्रेस करी, यूनिट टेस्ट में कितने नंबर आए, मिड सेम में कितने नंबर आए, फाइनल ईयर में कितने नंबर आए। तो वो जो रिपोर्ट आपकी स्टूडेंट की होती है उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं ना। Yes. और आपने लैबोरेटरीज वगैरह में कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए स्कूल में, Yes, sir. उसे क्या कहते हैं रिपोर्ट को? आप जब रिपोर्ट लिखते हो तो एक्सपेरिमेंट के बाद Finding reports. लैब रिपोर्ट, उसे कहते हैं लैब रिपोर्ट। तो कुल मिला के रिपोर्ट किसी भी चीज पे लिखी जा सकती है। ऑर्गेनाइजेशन पे एक एक पत्रकार भी लिख सकता है, एक स्टूडेंट भी लिख सकता है अपनी लैब रिपोर्ट, और स्टूडेंट की प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस रिपोर्ट भी उसकी टीचर लिख सकती है। तो देखा ना रिपोर्ट कितनी तरह की होती है। Yes, sir. इसका पर्पस एक और क्या है? रिकॉर्ड कीपिंग। आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आपने जो 11th क्लास में आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट आया या 12th में आया, वो सदा के लिए रिकॉर्ड बन गया ना। Yes, sir. तो रिपोर्ट, another objective of report writing is for record keeping. It keeps a record, and then finally when you write a report, after that you can suggest some actions कि दिल्ली में प्रदूषण जो है वो इतने पॉइंट से बहुत बढ़ गया है। Now the following steps are recommended. For example, implement odd and even formula for vehicles so that less number of vehicles are there on the road and they will not cause any pollution. ठीक है ना। तो क्या रिपोर्ट के एंड में हम क्या करते हैं? We recommend actions. समझ में आ गई ना? Yes, sir. So just to summarize it, objectives of writing report are: first, measuring somebody's performance; second, it helps in fighting any change or combating any change; third, provides information; fourth, it helps in controlling any activity. सपोज मुझे पता चला कि मच्छर बहुत बढ़ गए, नगर निगम ने एक रिपोर्ट डाली कि भोपाल शहर में मच्छर बढ़ गए, तो मेरे को क्या करना चाहिए? मुझे छिड़काव करना चाहिए। तो कोई भी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए भी रिपोर्ट बनाई जाती है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अब जैसे मान लो कि एक रिपोर्ट है, अब जैसे हमारे रातीपुर साइड में क्या हो रहा है कि सड़क बन रही है, तो सड़क बनने के लिए उन्होंने पूरी खोद दी, उसके बाद उनको खंबे चेंज करने। तो सड़क का काम कौन कर रहा है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। खंबे का कौन करेगा? बिजली विभाग। तो दोनों के बीच में पहले रिपोर्ट आएगी ना, तो बिजली विभाग बोलेगा कि अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा कि मैंने अपने पूरे खंबे जो है वो शिफ्ट कर दिए, अब आप रोड बना लो। तो जब वो रिपोर्ट पहुंचेगी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, फिर वो सड़क बनाने का काम शुरू करेंगे। तो ऐसे इंटर डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स भी आपस में शेयर की जाती हैं। समझ में आया बेटा? Yes, sir. हाँ, तो ये सातों पॉइंट क्लियर हो गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं? Yes, sir. Clear. ठीक है। अब है इंपॉर्टेंस
तो अभी इसके पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव, कि क्यों हम रिपोर्ट लिखते हैं, मकसद। अब हम देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। तो सबसे पहला तो अपने में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इट कन्वेज इंफॉर्मेशन। कोई भी रिपोर्ट किसी के बारे में आप पढ़ोगे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात है। दूसरा, इट इज ऑल्सो मेजर फॉर इट इज ऑल्सो टूल फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, नेहा की प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो मुझे बताएगी कि नेहा की जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स थे वो 10th में कितने थे, 12th में कितने होंगे, है ना। तो एनीबॉडीज परफॉर्मेंस कैन बी इवेल्युएटेड और मेजर्ड। थर्ड, इट हेल्प्स इन मेकिंग डिजायरेबल चेंजेस। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर मैंने आपको एक रिपोर्ट दी कि भोपाल में मच्छर भर गए, तो आप उसके लिए कोई भी मुहिम चालू कर सकते हो, जैसे कि जहां जहां पानी भरा हुआ है उसके ऊपर आप छिड़काव करवा दो, कुछ करवा दो। तो कोई भी चेंज इंप्लीमेंट करना होता है तो उसके पहले हमको मंगानी पड़ती है एक रिपोर्ट। समझ गए बेटा? यस सर। अब जैसे मान लो मेरे को रेलवेज का प्राइवेट, आप क्या बेटा, देखो आप है ना फाइनेंस लाइन के हो, अब आपको फाइनेंस लाइन ज्वाइन करनी है, बिजनेस लाइन। तो मैं आपको जो एग्जांपल देता हूँ ना, वो भी एक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आगे चल के आपको इसी लाइन में काम करना है। तो इसका सबसे अच्छा जरिया मैंने बताया आपको, CNBC TV18 देखना चाहिए, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज देखना चाहिए, मतलब बिजनेस से रिलेटेड न्यूज आपको देखनी चाहिए। तो मैं आपको जो एग्जाम्पल दूंगा आपको समझ में आएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी प्राइवेटाइजेशन हो गया एयर इंडिया का, मालूम है आपको? यस सर। किसने खरीदा? सर टाटा। हाँ, तो अब पहले रिपोर्ट गई होगी ना गवर्नमेंट के पास कि एयर इंडिया जो है पिछले 5 साल से घाटे में चल रही है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, गई होगी कि नहीं? तो सरकार ने बोला कि चलो 5 साल से हम लोग इसके ऊपर टैक्स का मनी डाल रहे हैं, इससे अच्छा हम इसको बेच दें। तो उन्होंने ये बेचने का जो फैसला है वो एक रिपोर्ट के आधार पे लिया होगा, राइट और नो? यस सर, राइट। हाँ, तो कोई भी चेंज अगर सरकार को या ऑर्गेनाइजेशन को अगर इंप्लीमेंट करना होता है तो सबसे पहले दे आस्क फॉर अ रिपोर्ट। ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट दे मेक डिजायरेबल चेंजेस। ठीक है? यस सर। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंस। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट दीज आर मेन फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, टूल्स फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग डिजायरेबल चेंजेस। ठीक है? यस। टाइप्स पे कितने प्रकार की रिपोर्ट होती है, अभी मैंने आपको 2 टाइप तो बता दिया। एक तो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बता दी, और दूसरा आपको कौन सा बताया? परफॉर्मेंस रिपोर्ट। लैब रिपोर्ट। लैब रिपोर्ट बताया ना, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। लैब रिपोर्ट। हाँ, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बता दिया, प्रोग्रेस रिपोर्ट बता दी, लैब रिपोर्ट। अब देखो टाइप जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लीगल आर्ग्यूमेंट, मतलब अगर सरकार बोलती है कि मेरे को ये तो रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, फर्म है, उसको अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट तो छापना ही पड़ेगा ना, सीए के थ्रू, है ना? यस सर। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है। तो यानी कि अगर कानून कहता है कि ये करना है तो वो हो जाता है लीगल आर्ग्यूमेंट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। इफ द गवर्नमेंट सेज कि करना है तो वो बन जाती है स्टैट्यूटरी, और अगर वो लॉ के मुताबिक नहीं है, मतलब लॉ में वो जरूरी नहीं है, तो इट बिकम्स नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। समझ गए? यस सर। जैसे सरकार, स्टैट्यूटरी मींस? स्टैट्यूटरी मतलब कि एज पर लॉ, स्टैट्यूटे, यस। स्टैट्यूटरी जो वर्ड है उसका मतलब होता है लॉ, स्टैट्यूटे लॉ। स्टैट्यूटरी मतलब एज पर लॉ, मतलब मेरे को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ये मैंडेटरी है एज पर लॉ, इट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। और मैं अपना क्या बोलते हैं, कुछ और करूं कि नहीं, कुछ और कोई भी अपनी जन्म पत्री बनाऊं कि नहीं, ये स्टैट्यूटरी है क्या? नहीं है। जन्म पत्री, जन्म पत्री बनाना कोई सरकार अनिवार्य तो नहीं की है ना। यस सर। नो। दोनों अलग अलग हो गई ना चीज। चलो अब नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी। मतलब फॉर्मेलिटी मतलब कि जो फॉर्मेट होता है वो उसके बेसिस पे अगर हम रिपोर्ट को समझें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल जैसे कि फॉर्मल बिजनेस लेटर होता है, तुमको बिजनेस लेटर पढ़ाया ना मैंने? यस सर। फॉर्मल बिजनेस लेटर होता है कि लेफ्ट साइड में अपनी सब चीजें रहती है, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो इसी तरह यस। एक रिपोर्ट अगर फॉर्मल होगी तो उसका फॉर्मेट निर्धारित होगा, इट विल बी ऑलरेडी डिसाइडेड, मतलब उसके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है? और इनफॉर्मल रिपोर्ट वो होती है जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने अगर अपनी फ्रेंड को चिट्ठी लिखी है ना, ऐसी फ्रेंडली चिट्ठी, तो वो हो जाएगी क्या, एक इनफॉर्मल टाइप की चिट्ठी, है ना। और अगर आप बिजनेस लेटर लिखोगे तो उसका तो फॉर्मेट होगा ना, होगा कि नहीं? यस सर। तो यही डिफरेंस है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन के आधार पर रिपोर्ट देखो कितनी प्रकार की होती है। इसमें 2 तरह की रिपोर्ट होती है, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन रिपोर्ट
एन इंटरप्रेटिव रिपोर्ट। अब ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज द रिपोर्ट जिसमें सिर्फ डेटा होता है। जैसे मैं फील्ड पे गया, मैं गांव पे विजिट किया, मैं गया गांव पे, वहां देखा अच्छा मेल कितने 57, फीमेल कितनी है 47, इनके पास गाय भैंस कितनी है 104, और यहाँ पर कुआं कितना है 3, सड़क कितनी है 4। तो ये डेटा अगर मैं सिर्फ रिपोर्ट में लिखता हूं तो वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और अगर उस डेटा के Yes. ऊपर कुछ इंटरप्रिटेशन करता हूं मैं, है ना, कोई इंटरप्रिटेशन करता हूं कि अब मैंने ये सब डेटा ले लिया कि जैसे वहां पर 4 ये 47 वो है मेल्स और 36 फीमेल्स हैं, तो परिवार कितने हैं? अच्छा, उनकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है? अच्छा, उनके पास मोटरसाइकिल है कि नहीं, उनके पास फ्रिज है कि नहीं, अच्छा कार कितने के पास है? तो अब जब मैंने इस डेटा को प्रॉपरली कोलेट किया, मतलब इसको टेबल में जमाया, देन आई कैन इंटरप्रेट कि क्या ये गांव गरीबों का गांव है या ये गांव में आमदनी अच्छी खासी है। ये जब मैं इंटरप्रेट करूंगा तो वो कौन सी रिपोर्ट बन जाएगी? इंटरप्रेटिव रिपोर्ट। समझ में आ गया दोनों के बीच में डिफरेंस? Yes, sir. समझाओ समझाओ क्या है इंफॉर्मेशन Yes, sir. इंटरप्रेटिव? हाँ Sir, in information report, the report is made on the मतलब सर कुछ मेन चीजों के ऊपर रिपोर्ट बनती है, रॉ डेटा जैसे उसमें कि सिर्फ गांव में घर कितने हैं। नहीं, उसमें सिर्फ रॉ डेटा रहता है, सिर्फ डेटा रहता है, डेटा, है ना। और उसी डेटा को Yes, अगर हम sir. लोग टेबुलर फॉर्म में बना के उससे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, तो वो क्या बन जाएगी? इंटरप्रेटिव रिपोर्ट। इंटरप्रेटिव। तो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में सिर्फ रॉ डेटा रहता है कि गाय कितना, बैल कितना, महिला कितनी, पुरुष कितने, टू व्हीलर कितने, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब इसके आधार पे अगर मैं कोई निष्कर्ष निकालूं, इंटरप्रेट करूं, तो इट विल बिकम इंटरप्रेटिव रिपोर्ट। ठीक है बेटा? यस। हाँ। अब टू क्या होता है? प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म व्हिच कैन बी अंडरस्टूड एंड ऑन द बेस ऑफ दैट यू कैन डिराइव इंफॉर्मेशन। क्या होता है कि डेटा में से, अब जैसे मैंने मान लो तुमको ये बताया कि 2001 में पेट्रोल का दाम क्या था, 2002 में कितना था, से लेकर 2021 तक बता दिया। ठीक है? जब मैंने आपको दाम बताया तो वो बन गई इंफॉर्मेशन, लेकिन उसके आधार पे अगर आपने एक निष्कर्ष निकाला कि अरे ये पेट्रोल के दाम तो बिल्कुल आसमान चले गए, ये कहाँ 60 रुपए था और आज हो गया 120, तो उसके ऊपर आपने इंटरप्रेट निकाला इंटरप्रिटेशन कि पेट्रोल इज नाउ कॉस्टलियर 100%, मतलब 60 रुपीज का था तो 120 का हो गया, मतलब उसमें इजाफा कितना हुआ? 100%। तो ये जब इंटरप्रिटेशन किया तो क्या बन गई? इंटरप्रेटिव रिपोर्ट। क्लियर है ना? यस सर, क्लियर। इसके बाद है नंबर ऑफ पर्सन। अब जैसे कि मान लो एक रिपोर्ट सिर्फ नेहा बनाती है अकेले, तो उसे कहेंगे इंडिविजुअल रिपोर्ट। और मान लो नेहा और कुछ लोग मिलके बनाते हैं तो क्या बोलेंगे? रिपोर्ट बाय कमिटी रिपोर्ट। हाँ, इजी है बात। यस सर। अब इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी जल्दी। अब जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हाँ बोलो बोलो। Sir, in community report, 2% can also be there. Yeah, कमिटी इज मोर देन वन। Okay, sir. कमिटी 2 लोगों की भी हो सकती है और 40 लोग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। ऑन द बेस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? निरंतरता, कितनी जल्दी, है ना। जैसे कि मेरे घर में 3 बार पानी आता है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 3 बार। तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी रिपोर्ट राइटिंग की भी होती है, रूटीन रिपोर्ट, जो कि आपको डेली, हाँ डेली या वीकली या मंथली, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी निर्धारित है। वो डेली भी हो सकता है, आवरली भी हो सकता है ना। जैसे मान लो डैम बन रहा है और चीफ मिनिस्टर बोलता है कि मुझे आवरली रिपोर्ट चाहिए, हर घंटे बताओ भैया कितना बना, तो वो आवरली भी हो जाएगा ना। अगर कोई बोले कि चलो सड़क बना रहे हो, चलो मुझे हर 6 घंटे में बताओ कितने किलोमीटर बनाई, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी वो डिसाइड करेंगे, लेकिन वो सब रूटीन रिपोर्ट हो जाएंगी, मतलब जो कि हर समय बनाई जाती है नॉर्मल तौर पे। और अगर कोई स्पेशल रिपोर्ट बनाई कि भैया नहीं मुझको इस तरह की रिपोर्ट चाहिए और अभी तक ऐसी रिपोर्ट बनी नहीं, तो उसको कहेंगे स्पेशल रिपोर्ट। तो रूटीन मतलब नॉर्मल, स्पेशल मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ठीक है ना? सर, स्पेशल रिपोर्ट्स आर मेड वंस। हाँ, मतलब स्पेशल रिपोर्ट होगी कि ये वंस इन अ ब्लू मून, कि मान लो एकदम जैसे किसी ने बोला एक रेस्टोरेंट है, वो सिर्फ रोटी बनाता है, सब्जी बनाता है और ग्राहक को खिलाता है। अब एक आदमी आया, बोलता है कि मुझे तो पूरी खानी है, तो वो स्पेशल ऑर्डर हुआ ना। यस सर। तो अगर हटके कोई रिपोर्ट बनाओगे तो वो बन जाएगी स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट, यस सर। है ना, स्पेशल मतलब कि हटके।
Yes, sir. हाँ, ऑन द बेस ऑफ लेंथ, लंबाई, अ रिपोर्ट कैन बी शॉर्ट रिपोर्ट, लॉन्ग रिपोर्ट, इजी है तो छोटी Yes, सी sir. रिपोर्ट और बड़ी Yes. रिपोर्ट, है ना। तो कितने प्रकार की होगी अभी फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे पहले है ऑन द बेस ऑफ Yes. फॉर्मेलिटी, जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है ना, फॉर्मल क्लोथ होते हैं, टाई लगा लूं तो फॉर्मल, इनफॉर्मल क्या, टी शर्ट। No, sir. First is on the basis of legal argument. हाँ, लीगल आर्गुमेंट, तो इट इज स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी। उसके बाद फॉर्मेलिटी, फॉर्मल इनफॉर्मल, फंक्शन मतलब इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रेटिव, उसके बाद नंबर ऑफ पर्संस, इंडिविजुअल Yes, और sir. कमिटी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, रूटीन और स्पेशल, लेंथ शॉर्ट एंड लॉन्ग, उसके बाद Yes. सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कि कौन से सब्जेक्ट पे है, जैसे मान लो अगर तुम अकाउंट्स की हो, है ना, तो अकाउंट डिपार्टमेंट बनाएगा तो अकाउंटिंग रिपोर्ट हो जाएगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएगा तो मार्केटिंग रिपोर्ट हो जाएगी, प्रोडक्शन, जैसे अब जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होता है। तो जौन सा डिपार्टमेंट ये रिपोर्ट बना रहा है, यानी कि उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी जिस टाइप की रिपोर्ट है वो बता देगा। क्लियर है ना? Yes. हाँ, Yes, तो sir. उसके बाद नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, कि वो टेक्निकल रिपोर्ट है या प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग रिपोर्ट है। प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग Yes, sir. होता है जो कि किसी भी चीज की प्रॉब्लम की वजह पता करे, कि यार हमारे यहाँ जो है हर महीने 50,000 रुपए का बिजली बिल आ रहा है, तो हमको ये एक रिपोर्ट बनाओ कि भैया ऐसा क्यों है। मान लो मैं फैक्ट्री हूँ, मैं फैक्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मैंने देखा कि ये हर महीने 50,000 का बिल आ रहा है, या देखा कि ये चाय जो है ये 25,000 रुपए की चाय कौन पी जाता है, ठीक है। तो Yes. 25,000 रुपए की अगर कोई चाय पी रहा है तो मैं अपने किसी से बोलूंगा कि तुम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करो कि कितनी चाय डेली आती है और कौन कौन सा डिपार्टमेंट कितनी कितनी पीता है। तो इससे मुझको एक पता चल जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा खर्चा कर रहा है ना। यानी कि Sir, the example that you have given for the Delhi pollution will come under the pollution determining report. हाँ, प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग रिपोर्ट, प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग, है ना। Yes, sir. नहीं, प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग रिपोर्ट नहीं, प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग नहीं होगा, वो होगा कि किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, है ना। प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग तो वो बहुत ही बड़ा एक वो है, उसको भी रहने दो, उसके अंदर मैं जाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी। एक्चुअली उसका Yes, कनेक्शन सिर्फ व्हीकल से नहीं है। वो क्या होता है कि पंजाब हरियाणा में वो लोग अपनी फसल जलाते हैं ना इस समय, हाँ, ये फिर उसका धुआं आता है। पराली का धुआं आता है, तो इसलिए तो उनको पंजाब हरियाणा का तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि अपने हाँ, यहाँ कंट्रोल करते हैं, तो वो एक अलग टाइप की चीज है ना। लेकिन कोई भी yes. वो है चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कॉम्बैटिंग चेंज, किसी भी चीज को चेंज करने के लिए आपको रिपोर्ट चाहिए ना, कि भैया अभी तो रोज आप अपनी 10-10 गाड़ियां निकाल के घूम रहे थे, अब आपका ऑड इवन आ गया। मान लो मेरे घर में 3 Yes. गाड़ी है और तीनों पे अगर ऑड नंबर है तो मैं ऑड दिन निकाल पाऊंगा, है ना। तो वो Yes. अलग चीज है। प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग रिपोर्ट की मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, या तो वो बहुत बड़े एक्सपेंस की है या कुछ और, उसका कारण जानने के लिए अगर कोई रिपोर्ट बनाई जाती है, दैट बिकम्स प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग रिपोर्ट। यानी कि प्रॉब्लम का सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, Yes. है ना। तो Yes, sir. अब जैसे कि रिपोर्ट बनाई कि ये कोरोना है ये कहां से पैदा हुआ, तो ये प्रॉब्लम की जड़ क्या थी, पता चला कि बैट, है ना, चिमगादड़, ठीक है। ये तो ये देख लेना, तो इजी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट, मेन तो ये है ना। अब एक रिपोर्ट जैसे कि तुम एक इमेजिन करो, तो अच्छा मेरी आवाज ठीक से आ रही है? Yes, sir, it's clear. ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट क्या है कि जैसे कि आपकी एक किताब उठा लो, सबसे पहले क्या रहता है, टाइटल पेज, है ना, ऊपर लिखा रहता है ना, कॉमर्स अकाउंटिंग, तो उसे कहते हैं टाइटल पेज। उसके बाद क्या आता है, अंदर अंदर आप खोलोगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स, और इंडेक्स बोलते हैं वो गलत है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, है ना। Yes, sir. वो एक ओवरव्यू देता है कि अंदर क्या क्या है। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट, जो राइटर होता है वो शॉर्ट में बताता है कि ये बुक जो है वो किस चीज के बारे में है। उसके एक इंट्रोडक्शन का भी पन्ना रहता है ना, इंट्रोडक्शन बताता है कि उसने कैसे अपनी बुक लिखी। अब इसमें क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव, रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव की क्यों रिपोर्ट ही लिखी जा रही है। उसके बाद आता है मेथोडोलॉजी, कि इस रिपोर्ट को बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट किया गया। फिर बॉडी ऑफ रिपोर्ट में सारा डेटा जो इकट्ठा किया है और सारी इंफॉर्मेशन को डिटेल से समझाई जाती है डायग्राम के साथ। और उसके बाद अगर कोई लिटरेचर, यानी कि रिपोर्ट बनाने के पहले हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं। जैसे मान लो मेरे को किसी मान लो मेरे को कारों के ऊपर कुछ रिपोर्ट बनानी है, तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा और कारों के बारे में पढ़ूंगा, है ना। तो अभी तक जो कारों के बारे में छपा हुआ है उसका मेरे को आइडिया हो जाएगा कि अरे अभी तक तो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी है, अब मेरे को अपनी रिपोर्ट बनानी है, तो इसके बाद मेरे को कुछ करना होगा नया।
तो सबसे पहले मैं बैठ के पढ़ता हूँ, है ना। जैसे मेरे को किसी भी विषय पे कोई रिपोर्ट बनानी है, इफ आई हैव टू राइट डाउन अ रिपोर्ट ऑन एनी सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू डू अ लिटरेचर रिव्यू. I will have to go and read magazines, journals, and books on that particular subject. Once I have read that, then I'll have a theoretical background. मैं जिस विषय पे लिखने वाला हूँ, रिपोर्ट बनाने वाला हूँ, उसका मेरे को एक बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा कि अभी तक इसके बारे में क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, क्या क्या पता है ना. उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे को मेरा सारा जो काम है वो सही दिशा में जाएगा. बात समझ में आ गई बेटा? यस सर. इसके बाद होता है मेथड, कि आपने जो फाइंड आउट किया उसके लिए मेथड क्या यूज किया, है ना, कि कौन सा आपने मेथड अपनाया. रिपोर्ट को राइट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं. स्टैटिस्टिक्स जो आती है, डेटा आता है, उसको भी इवैल्यूएट करने के बहुत मेथड्स होते हैं. तो आपने कौन से अपनाए, तो दैट इज आल्सो टू बी मेंशन्ड. उसके बाद डिस्कशन होता है कि आपने जो मेथड अपने, उसको डिस्कशन होता है कि फाइंडिंग्स जो आपने, मतलब आपने जो रिपोर्ट बनाई इसमें जो आपने फाइंडिंग्स निकाली उसके ऊपर आप डिस्कस करते हो. और कंक्लूजन, कि आपने जो इतनी बड़ी जो रिपोर्ट बनाई उसका मेन कंक्लूजन क्या है ना. कि जैसे कि जो पोल्यूशन है वो किस कारण हुआ, आपने अभी बनाया ना पोल्यूशन रिपोर्ट, या बिजली का बिल क्यों ज्यादा आ रहा है, या चाय का बिल इतना क्यों आ रहा है ना. उसके बाद फिर आप रिकमेंडेशन देते हो कि क्या एक्शन, करेक्टिव एक्शन आपको करना है. लास्ट में बिब्लियोग्राफी मतलब कि वो सारी बुक्स जो आपने रेफर करी, है ना, उनकी सारी लिस्ट, या आपने कोई मैगजीन पढ़ी, ऑनलाइन जर्नल पढ़ा, या कोई वेबसाइट विजिट करी, उसका सारा विवरण आप बिब्लियोग्राफी में देते हो. और अपेंडाइसिस क्या होता है, ये स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना. अपेंडाइसिस क्या होता है, जैसे मान लो मेरे को बहुत बड़ा नक्शा लगाना है, मैंने एक गांव के बारे में रिपोर्ट बनाई. अब गांव का मेरे को नक्शा भी लगाना है ताकि लोगों को समझ में आ जाए. नक्शा जो है वो बहुत बड़ा है, जैसे आपने देखा ना कि घर का नक्शा बहुत बड़ा होता है, टेबल पे पूरा बिछ जाता है, देखा इतना बड़ा नक्शा. अब मैं अगर उस रिपोर्ट के बीच में लगाऊंगा तो रिपोर्ट की जो कंटिन्यूटी है ब्रेक हो जाएगी. तो मैं क्या करता हूं, सबसे लास्ट के पन्ने में उसको फोल्ड करके A4 साइज में और नक्शा चिपका देता हूं. तो ऐसी कोई चीज जो मैं बीच में नहीं डालूं लेकिन इंपॉर्टेंट हो, उसको मैं सब अपेंडाइसिस में डाल देता हूं. समझ में आ गई? यस सर. अपेंडिक्स का मतलब भी होता है कि सबसे लास्ट में. अगर अपेंडिक्स वर्ड का हम लोग डिक्शनरी में मीनिंग देखें, इट मींस दैट थिंग दैट कम्स एट द लास्ट. सो अपेंडाइसिस में वो सब चीजें डालते हैं जो कि रिपोर्ट के बीच में उसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करे. ठीक है ना. अब एक बार मैंने पूरी रिपोर्ट एक कच्चा चिट्ठा लिख लिया तो उसको कहते हैं ड्राफ्ट. जब मैं कच्चा लिख लेता हूं उसको रिवाइज करता हूं, एडिट करता हूं, आगे पीछे उसके वर्ड्स करता हूं, सेंटेंसेस को सही करता हूं और प्रूफ रीडिंग करता हूं. जब मैंने 3-4 बार ये कर लिया तो फाइनली जब पूरा राइटिंग फाइनल हो जाती है तो मैं उसको प्रिंट कर देता हूं. और वो प्रिंटेड फॉर्म ही कहलाती है. क्या कहलाती है? रिपोर्ट. यस सर. ठीक है, इसको एक बार फिर से दोहरा देता हूं, समझ में आ जाएगा. तो द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. फर्स्ट इज द टाइटल पेज. इट शोज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट. टाइटल तो ये बताएगा ना कि इस रिपोर्ट के अंदर किसका क्या है. तो मैं लिखूंगा रिपोर्ट ऑन पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली, रिपोर्ट ऑन environmental hazard, report on. Excuse me sir. Sir, when in last year when I was in 12th na, then I have followed all these steps for making the project work. अच्छा, तो मालूम है सब कुछ ना. very familiar. Yes sir. तो प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग रिपोर्ट पाए जाते हैं, है ना. प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग रिपोर्ट, पर्पस. तो एवरी रिपोर्ट मस्ट हैव अ पर्पस. अब आपने रिपोर्ट क्यों बनाई, इसका मकसद तो होगा तभी बनाई ना. यस सर. वो हो गया पर्पस. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट, मतलब कि आपकी जो रिपोर्ट है उसके जो अंदर जो एलिमेंट्स है उसको एक सीक्वेंस में आपको जमाना पड़ेगा. तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट इनसाइड अ रिपोर्ट. क्लियर? ठीक है. शेड्यूलिंग. अब शेड्यूलिंग मतलब कि कौन सा काम कब करना है. जैसे मान लो मेरे पास 1 महीना है रिपोर्ट के लिए, तो मैंने 30 दिन को कैसे मैंने डिवाइड किया. ठीक है. जैसे कि सबसे पहले मैंने उसकी बैकग्राउंड स्टडी करी. उसके बाद मैंने डेटा कलेक्शन के लिए थोड़ा टाइम रखा. उसके बाद जब डेटा कलेक्ट किया तो उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है. उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन करना है, उसके निष्कर्ष निकालने, फिर उसको प्रॉपर्ली प्रिंट करना है. तो हर एक चीज का मेरे को शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, कितना टाइम किस पे लगाना है, उसी कहते हैं शेड्यूलिंग. ठीक है ना. यस सर. कॉस्ट एंड बेनिफिट. अगर मेरी रिपोर्ट बनाने की कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट कम है तो मेरे को रिपोर्ट नहीं बनानी चाहिए. हाँ, कॉस्ट कम लग रही है लेकिन बेनिफिट ज्यादा है, यानी रिपोर्ट बनाने के बाद मेरे को काफी सारी फाइंडिंग्स मिलेंगी जिससे मेरा फायदा होगा, तो मेरे को रिपोर्ट बनानी चाहिए. ठीक है. यस सर. इसे ही कहते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट. एक्यूरेसी मतलब कि जो डेटा है वो पूरा रिलायबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए.
वरना क्या होगा कि मेरी रिपोर्ट ही गलत हो जाएगी, उसकी फाइंडिंग्स गलत हो जाएगी। ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब कि जिस जिस टारगेट के लिए मैंने रिपोर्ट बनाई है उसी की लैंग्वेज में मुझे उसको समझाना चाहिए, वरना क्या होगा कि जो ग्रुप जिसके लिए मैं रिपोर्ट बना रहा हूं उसको समझ में नहीं आएगा कि मैंने रिपोर्ट क्यों बनाई। सही है गलत? सही है। हाँ। और टाइटल, जब मैं टाइटल चूज करूं, जैसे मैंने आपको बताया ना ईमेल लिखते हैं तो उसका टाइटल एकदम सही होना चाहिए, सब्जेक्ट। इसी तरह जब आप अपनी रिपोर्ट लिखते हो उसका टाइटल एकदम प्रिसाइज आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज पढ़ने वाले को समझ में नहीं आएगा कि ये रिपोर्ट किस चीज के ऊपर लिखी गई है। तो टाइटल हैज टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ठीक है। यस सर। लैंग्वेज, यूज द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय योर टारगेट ऑडियंस। आप हर समय वो लैंग्वेज यूज करिए रिटन में या स्पोकन में जो आपको सुनने वाले हैं उनको समझ में आए, अदरवाइज आपके लेक्चर का कोई फायदा नहीं है, आपकी रिपोर्ट का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? यस सर। नेक्स्ट इज फोटोग्राफ्स। अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। अगर मैं आपको एक फोटो दिखा दूं उससे आपको 1000 चीजें समझ में आ जाएंगी, रिटन वर्ड फिर भी थोड़ी थोड़ी समझ में आएंगे। तो जहां जहां पॉसिबल अपनी रिपोर्ट में क्या यूज करिए? फोटोग्राफ्स। ठीक है। और डायग्राम्स। कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखना। योर रिपोर्ट हैज टू बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट, है ना? उसके बाद रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस हर समय रिपोर्ट के एंड में दिए जाते हैं कि ये मेरे फाइंडिंग्स हैं और इसके बाद मैं, अब जैसे मैंने अपना जो समर प्रोजेक्ट है वो वीडियोकॉन में किया था 1996 में, 7 में सॉरी। तो उसमें मैंने ब्रांड इमेज ऑफ वीडियोकॉन ऑडियोज निकाला था इन द सिटी ऑफ मुंबई। उसके बाद मैंने उनको बताया कि आप अपनी ब्रांड इमेज कैसे अच्छी कर सकते हैं। तो उनको 4-5 स्टेप्स बताए कि अमिताभ बच्चन को बुला के अपने ब्रांड को आप एडवर्टीज कराइए, है ना? जैसे मान लो मैंने कोई सामान बनाया और उसको टीवी पे अमिताभ बच्चन बोल रहा है कि सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा वॉशिंग पाउडर है, सबसे अच्छी मिठाई है, सबसे अच्छा पापड़ है, तो लोगों को अच्छा लगेगा ना कि अमिताभ बच्चन अगर रिकमेंड कर रहा है मतलब अच्छा ही होगा, उसकी इमेज अच्छी। तो ये रिकमेंडेशंस देते हो आप, ये रिकमेंडेशंस देते हो अपने रिपोर्ट के एंड में। तो ऐसे ही हर रिपोर्ट के एंड में क्या दिया जाता है? रिकमेंडेशंस, कि ये करोगे तो ऐसा फायदा होगा। सिग्नेचर और डेट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिपोर्ट की जो वैलिडिटी होती है वो सदा के लिए नहीं रहती। मैंने 1997 में जो रिपोर्ट बनाई उसकी वैलिडिटी आज नहीं है, वो सिर्फ उसी साल के लिए वैलिड थी। तो आपको अपनी रिपोर्ट के नीचे क्या देना पड़ेगा? डेट एंड सिग्नेचर। जिसने बनाई है उसको ओनरशिप लेनी पड़ेगी और जिस डेट को बनी है उसकी डेट मेंशन करनी पड़ेगी ताकि पता चले कि किस काल में बनाई गई है, किस समय के लिए एप्लीकेबल है। समझ में आ गया ना बेटा? यस सर। हाँ। अब डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ रिपोर्ट है। एक अब इसमें बहुत ही प्रिंटेड फॉर्मेट रहता है, एक जैसे फॉर्म रहता है ना, फॉर्म प्रिंटेड ऑलरेडी फॉर्म रहता है, उसके अंदर भरते जाओ फिल द ब्लैंक्स। इस टाइप की रिपोर्ट भी होती है, प्रिंटेड रिपोर्ट। लेटर फॉर्मेट में होती है, मान लो अपने कंपनी के बाहर भेजना है तो लेटर फॉर्मेट में होती है। फिर मैन्यूस्क्रिप्ट होती है जो हाथ से भरी जाती है, हाथ से बनाई जाती है। ठीक है, 2-3 टाइप की रिपोर्ट है, इस पर डिटेल आप पढ़ लेना, लिंक शेयर कर। मेमो रिपोर्ट। हाँ, मेमो, मेमो मतलब जैसे कि एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन की अगर बाहर जाती है तो उसको लेटर रिपोर्ट कहते हैं। मतलब मेरे को अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपने शेयर होल्डर से शेयर करना है तो मैं एक लेटर टाइप की रिपोर्ट बना के उनको भेजूंगा। और अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर घूमनी है तो उसे कहते हैं मेमो, यानी मेमोरेंडम। मेमो किसका शॉर्ट फॉर्म है? मेमोरेंडम, है ना? ठीक है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट। इसमें स्ट्रक्चर को बेसिकली 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, फ्रंट मैटर, मेन बॉडी और बैक मैटर। फ्रंट मैटर में क्या आता है? कवर पेज, फ्रंट पेज, ये टाइटल पेज। हमने जो स्ट्रक्चर किया तो किस तरह और इसमें डिटेल में आता है वो ये सब दिया है ना? सबसे पहले कवर पेज होता है जिसमें कि टाइटल लिखा रहता है। फिर फ्रंट पेज होता है, पिक्चर वगैरह हो सकती है। टाइटल पेज होता है उसके अंदर। उसके बाद कॉपीराइट नोटिस, सीन सर्कल लिखा रहता है ना? सीन सर्कल, ताकि मेरा काम कोई और चुरा ना ले, उसे कहते हैं कॉपीराइट नोटिस। ठीक है। फिर मैंने बताया ना मैंने वीडियोकॉन में किया था, तो वीडियोकॉन ने मुझे सर्टिफिकेट दिया कि रोशन सहजपाल ने 2 महीने की रिपोर्ट बनाई है। वो सर्टिफिकेट भी मैंने रिपोर्ट में लगाया ताकि मेरे रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश हो सके। ठीक है। फॉरवर्डिंग लेटर की मैंने रिपोर्ट क्यों बनाई? कि मेरी समर ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट था। एक्नॉलेजमेंट, मैं उन लोगों को थैंक यू बोलता हूँ जिन्हें मेरी हेल्प करी, वो सब एक्नॉलेजमेंट में आ जाता है ना? प्रीफेस क्या होता है कि इंट्रोडक्शन टाइप का होता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको मालूम है, मैंने बताया क्या होते हैं। इलस्ट्रेशन, मान लो मैंने खूब सारी फोटोग्राफ्स यूज करी है तो मैं टेबल ऑफ कंटेंट के बाद लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन भी दे दूंगा कि फलाने फलाने पन्ने पे ये वाली फोटो है, फलाने फलाने पन्ने पे वो वाली फोटो है, ये वाला मैप है या डायग्राम है। समझ में आ गया? लास्ट में लिखा है बेटा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज द समरी ऑफ द रिपोर्ट विदाउट एनी इलस्ट्रेशन एंड दिस 2.5% ऑफ द टोटल रिपोर्ट। यानी कि अगर मान लो 100 उसकी है तो 2.5%
उसका जो होगा वो समरी या एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा। ठीक है बेटा? यस अब वही चीजें ये पूरी ये डिटेल में दी गई है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, फिजिबिलिटी, ये वो, इसको आप पढ़ लोगे तो ये पूरी चीज एकदम से रिवाइज हो जाएगी। कवर, टाइटल, रिपोर्ट, ये पूरा मैं आपसे शेयर यस करूंगा, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट, प्रिसीजन, एकदम मतलब आपको बुलेट पॉइंट्स में दिया है, तो आपको बहुत कम समय में समझ में आ जाए। यस सर। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, देन टेल मी। नो सर। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग जल्दी जल्दी बाकी के जो बचे हैं, और जब ये छोटी छोटी चीजें खत्म हो जाएंगी तो फाइनली हम लोग ग्रामर शुरू करेंगे, जो आपका आखिरी चैप्टर है। ठीक है बेटा? ओके। कोई आज की जो टॉपिक थी उसको समझने में दिक्कत तो नहीं आई? नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, तो मैं आपसे लिंक शेयर कर लूंगा, तो आप जब भी आपको टाइम मिले इसको देख लेना। अगर मेरे को मान लो कल भी टाइम मिलता है तो मैं कल भी आपकी क्लास ले लूंगा, है ना। तो इस हफ्ते अपन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखेंगे कि 8 बजे जब भी सर अराउंड 7 to 8। हाँ, मतलब 8 बजे के बाद ही बेटा ले पाऊंगा, क्योंकि मैं कॉलेज से 7:30 बजे आ रहा हूँ, है ना। हाँ ओके सर। नहीं वो सर 9 बजे से मैथ्स की क्लास होती है ना, इसलिए। तो हम लोग तो 40 घंटे में, ये 40 मिनट में खत्म कर देंगे ना। देखो आज 8:40 हाँ ओके सर। है ना, तो आपके पास 15 मिनट है, आप रिलैक्स हो लो। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो, ऑल ओके द बेस्ट सर। बेटा। हाँ थैंक यू ओके सर। ओके। ओके।